चैट बॉक्स हाँ इसको कर देंगे नॉइज। जी उस्मान I was talking about the law of equity marginality. Yeah? Sorry, interrupted by some technical errors. You there? Are you there? हाँ fine fine. Okay, हम continue करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, अब वो रेज हो गया यहाँ पे, but you have I guess on your screen and whatever in book. If the consumer is getting total satisfaction by 340 and by spending 3 units on, are you listening? Okay. Question repeat करता हूँ, then you please respond me. हाँ. If the consumer is getting maximum total that is 340 by spending 3 units of X and 2 of Y, right? यहाँ पे उसकी marginal utility equal है, and the consumer is spending income according to the law of equi marginal utility. That's it. Now my question is, if consumer want to get maximum total satisfaction, so why not spending income in a way that consumer is getting 4 unit of X and 3 of Y? In this way, consumer can get more of 100 utils and might उसका जो total satisfaction होगा, that would be 440. So why consumer is not spending? I mean, why not getting 4 of X and 3 of Y? Rather, he is spending and getting just 3 of X and 2 of Y. You got my question? Okay, want to maximize his satisfaction ना, तो बेटे मैक्सिमाइज तो इसके आगे भी हो जाएगी। नहीं, उसको नहीं करते हम, उससे पहले देखते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा प्लीज रिपीट करना चाह रहा हूं। ओके, नाउ लिसन फर्स्ट। I mean, let me clear my question, okay? Okay, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है टोटल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, राइट? और उसके लिए लॉ क्या है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसे अपनी इनकम इस तरह स्पेंड करना है कि उसका MU इक्वल हो, then it would be possible to get maximum total satisfaction. अब उसने क्या प्लान किया? उसने क्या किया कि 3 of X परचेज कर रहा है यूनिट्स एंड 2 of Y। यहां पे उसकी जो इक्वी मार्जिनल है वो लॉ भी बन रहा है पूरा, और टोटल सेटिस्फेक्शन ही इज गेटिंग 340। ओके, बट माय क्वेश्चन इज, if he'll spend his income and getting suppose 4 unit of X and 3 of Y, his total satisfaction would be I guess 440. So why not consumer getting 440? क्या वजह है कि वो 440 क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा? नो आइडिया। चलें, लेट मी गिव यू क्लू। चेक इट। इनकम कितनी है उसकी? इनकम हमने क्या अज्यूम की थी स्टार्ट में? हाउ मेनी इनकम ही हैज? रुपीज? गुड, 5। एंड प्राइस ऑफ ईच यूनिट सपोज वाज ₹1. How many units maximum consumer can get? So अगर मैंने कहा आपसे कि वो 4 यूनिट ऑफ X और 3 यूनिट ऑफ Y परचेज करे, तो उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा,
और मार्जिनलिटी इक्वल भी हो जाएगी 50-50 पे। तो व्हाई नॉट ही इज गेटिंग 4 ऑफ एक्स एंड 3 ऑफ वाई? अच्छा, ओके लिसन फर्स्ट। बट बड़ा एक्चुअली वो थोड़ा सा आपको ना ये फिजिकल डिस्टेंस की वजह से, समटाइम वी आर नॉट कैचिंग आवर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। जी लिसन नाउ। बेटे मैंने कहा ही हैज 5 रुपीज। अब नाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग द आंसर, नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, ओके? Listen my answer. I said he has 5 rupees. Price of each unit is rupees 1. Maximum units consumer can purchase 5 units. And he is spending his income 3 unit of X and 2 of Y. Total कितने units हो गए? 5. 5 रुपीज में 5 यूनिट परचेज कर सकता था, वो कर लिए उसने। वहां पे टोटल सेटिस्फेक्शन चेक की, दैट वाज 340। अब मेरे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई ही इज नॉट गेटिंग 4 ऑफ एक्स एंड 3 ऑफ वाई, तो इट वुड बी टोटल 7 यूनिट्स। 7 units multiplied by 1 rupee, 7 rupees required. So consumer want to get maximum, no doubt, but problem is what? He has only 5 rupees, but if he will go for 4 unit of X and 3 of Y, he has, yes, he has to get 7 rupees, but he has only 5 rupees. So that's very important to understand कि consumer की wishes तो maximum satisfaction है, no doubt, बट उसका एक कंस्ट्रेंट ये भी तो है साथ में कि उसकी इनकम भी देखनी पड़ेगी। आई गेस यू गॉट इट, राइट? चलो एक इसी क्वेश्चन को मैं और चेंज करता हूं। ही हैज ओनली 5 रुपीज, फाइन, ओके, रुपीज 1 पर यूनिट, फाइन। मैक्सिमम यूनिट ही कैन गेट 5। सर व्हाई नॉट ही इज गेटिंग 2 ऑफ एक्स एंड 3 ऑफ वाई? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? 5 रुपीज में 7 यूनिट तो नहीं आए, वो तो हमने छोड़ दी ऑप्शन। नाउ व्हाई ही इज नॉट गेटिंग 2 unit of x and 3 of y? उसने, now that's it, now I am happy. Yes, this is a complete answer for this question. It means you got the idea. मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपसे डिस्कस कर लिया। वन वे मैंने आपसे पूछा कि अगर उसकी वायलेशन करें तो फिर क्या होगा, अगर उसकी वायलेशन करें तो फिर क्या होगा, और अगर मैंने दूसरे ऑप्शन में कहा कि वायलेशन ना करें और वो 7 यूनिट्स पे जाना चाहे, तब भी आपने रिस्पॉन्ड किया कि ही इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ इनकम। ओके ओके। दूसरी बात, ये पेज प्लीज आप पैक आई कैप ओपन करना था पेज। पेज नंबर है दैट इज 100। ओके 98 से स्टार्ट नहीं, आप वहीं पे जाओ डायरेक्ट 100। ओके ओके फाइन। अब आप मुझे एक बात बताएं, उसमें आपके पास जो पेज कैप्चर होके मेल हुई, उसमें उसका टेबल भी बना हुआ है, अजम्पशंस भी हैं, राइट? अब वही अजम्पशन मैं पैक की बुक से, आई कैप की बुक से पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 101। ये बड़ा डिसऑर्डर इसने कर दिया हुआ है, अजम्पशन बाद में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंस पहले दी हुई है। ओके फाइन, पेज नंबर 101 प्लीज।
How many assumptions are there on your page 101? 8. Okay. First is the consumer behaves rationally and seeks to maximize total satisfaction. मीन्स वो कहता है कि फर्स्ट उसकी assumption ये है कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल वन. रैशनल मीन्स कि उसको अपनी इनकम का, अपनी अवेलेबल ऑप्शंस का आइडिया है, एंड कंज्यूमर वांट टू गेट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन. वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा. यूटिलिटी इज मेजर इन कार्डिनल टर्म्स. हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकली. अदरवाइज तो अभी हम देख रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल करनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. So उसने कहा it is assumed that the marginality is cardinally measurable. Okay. And number 3, the consumer has a given scale of preference for the goods in consideration. उसको आइडिया है कि अगर मैं दोनों गुड्स को परचेज करूंगा तो मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की वजह से, टेबल में अगर आप देखें, अगर आपका जो टेबल है उसमें आप देखें तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कि वो वहां पे दोनों कॉलम्स के अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई हो रही है. हैव यू सीन ऑन पेज? यस. तो कहता है कि उसको आइडिया है कि मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट, द कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम गुड्स. उसको एग्जैक्ट आइडिया है कि कितने यूनिट परचेज करूंगा तो किस यूनिट की कितनी यूटिलिटी ड्राइव हो रही है. वांट्स एंड गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, यानी कि आप एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो यू कैन. प्राइस ऑफ द गुड्स आर अनचेंज. हमने अपनी assumption में प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रखी थी? ₹1. तो हमने अपने सारे एक्सपेरिमेंट में प्राइसेस को चेंज नहीं किया. कंज्यूमर इनकम इज फिक्स्ड. वी गॉट इनकम ₹5 ना, सो दैट इज यूम फिक्स्ड. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. मीन्स इनकम ज्यादा या कम होने से जो आपकी इनकम है अगर वो चेंज हो भी रही है तो उससे आपकी यूटिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. These were your assumptions. Okay. Right. Now the next limitation of the law of equimarginality. Usually जो limitations होती है बेटे वो उसी law की assumption का criticism होता है. First was is what consumer do not make conscious calculations. Usually हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा मार्केट सर्च नहीं करते हैं. हम अपनी कमोडिटीज को की यूटिलिटीज को बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर रहे होते. ठीक है, सरसरी सा एक ओवरव्यू जरूर ले रहे होते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं. उनको अपेरेंटली थोड़ा बहुत चेक भी करते हैं कि विच इज बेटर विच इज नॉट. बट बहुत साइंटिफिकली, बहुत माइन्यूटली, बहुत डिटेल हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं. इजंट? बिकॉज हम लोग एक लेमैन के तौर पे मार्केट में जाते हैं. हम कोई प्योर इकोनॉमिस्ट के तौर पे नहीं जाते कि जिसने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई लैब टेस्ट करना है. तो हम यूजुअली कंज्यूमर जो होता है वो नॉट मेक कॉन्शियस कैलकुलेशंस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर बाइंग नहीं करता वो. कंज्यूमर इग्नोरेंस. यस, व्हाट बट? स्टूडेंट नहीं, इतने भी कॉन्शियस नहीं होते. वो भी समटाइम्स, मैं बताता हूं आपको, फाइनेंशियल इश्यूज होने के बावजूद भी आप देखें ना, इररेशनल, आप भी फिर देखिए मार्केट में इररेशनल स्पेंडिंग हो रही होती है. लाइक वो क्या देख रहे होते हैं, समटाइम वो किसी प्रोडक्ट की अपीयरेंस चेक कर लेते हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि वो चीज दिखने में अच्छी लग रही है तो फाइन. यूज करने के बाद उसको आइडिया होता है कि यार ये जो प्रोडक्ट मैंने परचेज की दैट वाज नॉट अ गुड प्रोडक्ट. लेकिन क्या है, इमेच्योर एज होती है,
इमेच्योर एज होने की वजह से वो फौरी फौरी शॉपिंग करते हैं, दोस्तों के कहने पे परचेज कर लिया, जो मुझे दिखने में अच्छा लगा मैंने वो ले लिया, बट दे आर नॉट एज स्मार्ट एज द सेलर्स आर, इजंट? ऑब्वियसली हो जाती है। और सेकंड ये देखो, मेरी बात सुनो, अगर आपने क्वेश्चन किया तो लेट मी रिस्पॉन्ड। आप जितने मर्जी स्मार्ट हो जाएं, आप कितने भी स्मार्ट बायर हो जाएं, आप सेलर से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। हम ऑफ एंड ऑन शॉपिंग करने जाते हैं, उसमें भी कई कंस्ट्रेंट होती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने एक शर्ट परचेज करनी है तो जाओ पूरे लाहौर में घूमो, पहले पूरे लाहौर में घूमने के बाद सारी मार्केट, सारी शॉप, सारी प्रोडक्ट एक एक को चेक करने के बाद डिसाइड करो। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू? ऑब्वियसली नॉट। सो दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए, या हो पाएंगे आप, इसलिए उसने कहा है कि कंज्यूमर डू नॉट मेक कॉन्शियस कैलकुलेशन। वो मार्केट में जाकर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता कि मैंने आज 10 चीजें परचेज की हैं, क्या सबकी इक्वी मार्जिन हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो मैं और स्टे करूंगा, जब तक ये इक्वी मार्जिन नहीं होंगे सारे, मैं नहीं आऊंगा वापस। इज इट पॉसिबल? नो वे। सो दैट्स व्हाई, एक सेकंड, सॉरी वो नहीं, वो हो गया था इशू। वो मैंने उससे पूछना था कि उस्मान ने, आपने एक मेल किया था ना कैप्चर करके, तो उसको आइडिया नहीं हुआ था, मिली बाद में उसने मुझे बताया, तो सॉरी मैंने आपको मैसेज कर दिया था, डोंट कम। चले, मैंने आपको दोबारा भी मैसेज किया था कि स्टूडेंट गॉट दैट मेल। ओके, थैंक यू टीए इरफान, थैंक यू भैया जी, प्लीज। सो दैट्स व्हाई, इज इट क्लियर ना, कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस कैलकुलेशन नहीं कर रहा होता कंज्यूमर। टू सम एक्सटेंट आप कॉन्शियस होते हो, अप टू सर्टेन लिमिट, आपकी भी एक लिमिट है, आपका टाइम कंस्ट्रेंट है, आपने उसको भी देखना है, आप फ्यूल कंस्ट्रेंट है, आप बहुत ज्यादा रोमिंग मार्केट की नहीं कर सकते। फिर आपका नॉलेज बड़ा लिमिटेड सा है, आपको बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता आइडिया। समटाइम आपको स्टफ का आइडिया नहीं हो रहा होता, ब्रांड का आइडिया हो जाता है। समटाइम आप अपेयरेंस चेक कर लेते हो, कलर बाद में फेंट हो जाते हैं। सो बहुत सारी चीजें आपको रियलिटी में उसका आइडिया नहीं भी होता। सो सेकंड देखें, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर को बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं होता, वो बॉदर भी नहीं करता। फिर कस्टम एंड फैशन, यूजली हम चीज जो परचेज करते हैं वो कस्टम या फैशन बेस्ड परचेज करते हैं, हम उसकी कोई यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं कर रहे होते हैं, या हम अपनी यूटिलिटीज को कंपेयर करके इक्वल मार्जिन पर नहीं जा रहे होते हैं। हम बहुत सारी चीजें ट्रेंड बेस्ड परचेज करते हैं, बहुत सारी चीजें हम ट्रेंड बेस्ड परचेज कर लेते हैं ना, कि जो इन है वो परचेज कर लिया। इन इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं हो पाती हैं पार्ट्स में। सपोज आप कहते हैं जी मैंने लैपटॉप लेना है, सेलफोन भी लेना है, फिर मैंने एक बुक भी लेनी है, तो इक्वी मार्जिन करने के लिए आप कहेंगे थोड़ा सा लैपटॉप ले लेता हूँ, आधा सेलफोन ले लेता हूँ। सो वुड इट पॉसिबल? बिकॉज वन बुक इज नॉट कैरिंग यूटिलिटी इक्वल टू वन लैपटॉप। तो फिर आप बुक और लैपटॉप को कैसे, या तो बुक्स फिर 100 बुक्स परचेज करें, 100 बुक्स की यूटिलिटी माइट वन लैपटॉप के इक्वल हो, या फिर लैपटॉप का स्मॉल पार्ट निकालें जो एक बुक के इक्वल यूटिलिटी करें। और लैपटॉप डिवाइड हो नहीं सकता, फर्दर बाइफरकेट पार्ट्स में हो नहीं सकता। सो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर पाते, उनकी वजह से वो इक्वी मार्जिन में फॉल नहीं कर पा रही होती। इसे कहते हैं इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड अंडरलाइंग अजम्पशंस। अजम्पशन जो हमने एज्यूम की हुई है वो आमतौर पे रियलिस्टिक नहीं होती। लाइक यूटिलिटी को उसने कहा कार्डिनल मेजर करो, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल नहीं। हमने कहा प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, इनकम रिमेन कांस्टेंट एक्सेट्रा। ओके, you got limitations. Now any confusion up to assumption and limitation? Yes, obviously it does not apply in real world directly, but इनका ये बेस प्रोवाइड करता है for your upcoming mean law of equimarginality, in fact providing basis for indifference curve analysis ना। इसलिए एब्सोल्यूट टर्म में ये लॉ
practically applicable नहीं है, but it is providing some basis for the upcoming and forthcoming laws. Okay, okay, but that's not our issue right now. Now the pay number 100, importance of law of equity marginality. I guess you have on your book or not right now, जो मैंने आपको मेल किया उसके अंदर it is showing your importance or not? I mean, importance of law of equity marginality is showing on your mail or not? I guess no. Yeah, yes, I'm sure I know. Okay, fine. Page 100 on your ICAP book. Importance to है एक consumption और एक production. इन्हें आप read कर लीजिएगा. Even then, if you feel any ambiguity or any problem, then do tell me. Okay. So after that, Alhamdulillah, it is over. Law of consumer behavior is over. Nothing is left to discuss so far as your consumer behavior is concerned. Alhamdulillah. Okay, ji. Now we have done what already? We have done demand, supply, equilibrium, elasticities. अच्छा एक टॉपिक था elasticity, supply and time. You have idea? Okay. I guess इसमें कोई और इशू होना नहीं चाहिए आपको. Can you tell me? I mean, today is fourth lecture or fifth lecture? This is going. I don't know which one is not yet. Not yet studied. Okay. Can you tell me? I mean, the number of lecture today? I mean, number of session gone. Fifth or sixth. So Alhamdulillah, in 6 lecture maximum. Okay, fine. In 6 lectures, we have done demand, supply, elasticities, and usually it takes 15 to 12 to 15 lectures for a fresh candidate. For a fresh candidate, it almost took 12 to 15 lectures. So Alhamdulillah, this is only cause of your understanding, and already you have done a lot for economics. That's why we have done it within 5 to 6 lecture sittings. Even we are talking on online. So बस आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस पे काइंडली स्पीड रखिएगा. आज एक और टेस्ट मेल करूंगा मैं आपको, और उसका टॉपिक भी उसके ऊपर मेंशन होगा. दैट वुड बी अबाउट लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. तो आज पहले आप वो वाला टेस्ट करना, दैट इज पेंडिंग. यू गॉट 3 टेस्ट, बट नो देयर आर 2 टेस्ट आई गेस. एक आपका सब्जेक्टिव होगा और एक आपका एमसीक्यूज. अगर आपने यू गॉट 3 टेस्ट, उसमें एक एमसीक्यूज बेस होगा क्विज और 2 टेस्ट आपके सब्जेक्टिव होंगे. ओके, 3 सब्जेक्टिव. ओके फाइन, आप इसको करें, मैं भी इसको चेक करता हूँ. बल्कि मैं टीए से कहता हूँ वो मुझे भी मेल सीसी किया करें. सीसी किया करें, आप भी काइंडली मेल सीसी किया करें. जो आप मुझे मेल करोगे वो मेरे नाम पे भी सीसी करेंगे और उसको भी सेंड करेंगे टीए को. और उससे भी मैं कहूंगा कि जो मेल आपको करें वो मुझे भी सीसी करे, सो दैट मुझे भी आइडिया हो कि व्हाट ही इज सेंडिंग यू. राइट. तो इस तरह हम इंशाल्लाह ताला ऑन बोर्ड रहेंगे. टेस्ट आप करते जाना. So result would be inshallah quite alhamdulillah better. Fine. See you tomorrow. Thank you. Allah Hafiz.